Thank you. Okay, so let us start. So as discussed, today we'll be doing pipelining and lasso ridge. Okay. And I think, just say if time allows, we can go for sampling. Otherwise, just say Rajat needs association rule and sampling thing. So those two things are left. So I'll not be, this will not be the last class. Next Saturday, we'll be discussing those two topics as well. And then next Saturday will be the last class for our batch for Python. Okay. So today we'll be covering pipeline concept and the concept of lasso ridge. तो फिर हमारे पास 2 ही बचेंगे, वो next week करेंगे. And then, और meanwhile आपके कुछ doubts हो, something else you can just ask. Okay. Shall we start then for lasso ridge? Is everyone here? Because only Gagan has responded. So are you all here? Okay. Okay, let us start. So, okay. So I'll be explaining the concept of pipelining onto a Titanic dataset. So we'll see how pipelining will, reduce the complexity of code, and it will, make an easy process flow. Okay. Also, along with pipeline concept, we'll be discussing, how am I audible? Okay. Okay, so let us start. So I have taken Titanic data set here because इसमें आपका missing values भी है, इसमें आपका dummy encoding में some sort of data cleaning is also there, and classification problem है. So we'll try to use imputer from sklearn so that we can treat the missing values. If I don't want to treat them myself and I want to use a predefined function, so we'll be also covering that today along with pipelining, how we can align those things one after another. Okay. Just one thing, actually, just give me a second. Okay.
So let us start. So Titanic dataset is already with you guys. So I've just imported my dataset, and you are already aware of this dataset what it's talking about. Okay. So you can code along. I've not shared the file. So इसमें this is my data pre-processing वाला function only specific to Titanic dataset, because we know इसमें हमने कल भी देखा था logistic regression के discussion के time पे that missing values are into age column and into the cabin column. Cabin column में आपका majority data missing है, तो we tend to drop that column and we'll be doing the missing value treatment for age only. ठीक है. We need to do a dummy encoding for gender. We need to do a dummy encoding for embarkment here. So दो features है जिनके लिए मुझे dummy encoding करना पड़ेगा, and I will have to drop cabin column and I will have to do missing value treatment for age. ठीक है. तो age के लिए I will not be doing the treatment like myself. I'll be using the predefined function from sklearn. बाकी this is a function, it's taking care of everything. So what I've done here, जो मुझे features नहीं चाहिए, outlier treatment is not done here. First of all, outlier treatment you can also include it into the function. तो जो पूरा data cleaning का आप एक function बना सकते हो whenever you do a code, make one function for data cleaning. Process flow ऐसे रखना कि अगर यहाँ पे कुछ output है, that output is derived from the previous line. तो proper end-to-end function बनाना and just apply that function onto your data frame, and then your data frames will be clean in one go. Okay. तो यहाँ पे as per this data, I have not taken care of outliers. So you can also take care of them and do it yourself. You already know, you're already aware of that concept. Okay. So here I am dropping these columns. So I've defined the function def dc and I want to work onto my data. And from that data, I'm being specific about the features, because this is my Titanic data set. So I cannot do any sort of comparison. I know I don't want these features to happen into my data frame. ये तो कुछ important है नहीं, and cabin was having missing values, इसलिए आप drop them, and the change is what permanent here. तो अब जो first line के बाद, एक second, अब जो आपका second line के बाद code आया है उसमें आपके सब columns हट गए हैं, right? After that हमें क्या बनाना था? We have to go for dummy variable for gender and embarkment. तो I've used pd.get dummies code and I've used drop first. तो इसका output क्या आया? सिर्फ 0101, and उसको मैंने किस में overwrite कर दिया? To the existing column. ठीक है. Same process has been done for embarkment, जिसमें I've made dummy variables for embarkment. इसमें हमारी कौन कौन सी categories है? P, Q, and S. तो I'm dropping first here, तो you'll be left with P, Q या फिर QS. इनमें से जो भी कोई dummy के according जो भी first आएगी, that will be dropped, and we'll have these two features only. And since क्योंकि मैं एक ही column में overwrite कर रही हूँ, so I will have only one column for embarkment having 0101 values. Okay. तो दो column मैंने नहीं create किया यहाँ पे. दो column create करने हो तो you can create a new data frame and then perform the concatenation. So I've not done that. I've not taken that approach. मैंने इसी पे dummy बनाया and I'm overwriting this existing column by using drop first. So दो categories बची 0101. Okay. So I've dropped certain features. उसके बाद I've made dummy variable for gender. I've made dummy variable for my embarkment, and then I'm doing the train test split also herein. So train test split में, because at this point these things are gone. इसका dummy बन गया है, इसका dummy बन गया है. So as per now my data is clean. जितना मुझे चाहिए, apart from what? Apart from जो हमारा age का missing है, that is not taken care yet, right? तो मैंने age के missing values के साथ ही I am doing a train test split है. You see what I'm taking here? So from this one, क्योंकि using these features मुझे किसका prediction करना है? Survival का. तो ये मैंने already हटा दिया, ये clean हो गया है. So I'm just only left with survived, जो मुझे नहीं चाहिए, right? So data dot survived मैंने किया, and I'm not doing it permanent. So just temporarily, this is what I've defined my X, and data survived में I'm defining what? I'm just defining my Y. Rest is your train size and test size. So I've defined my X and Y, I've defined my test size and जो भी है, you all are aware of this process. And I'm getting my X train, Y train, X test, Y test. And I am returning this so that जो भी मेरा data clean हो जाए, उसके बाद when I get my X train, X test, because मुझे algorithm में क्या feed in कराना है? X train, and I want to evaluate onto X test. So I am doing return for all these values. So when I'm returning these values, abhi my purpose here is not to make a model end to end, because you are aware of that concept. The purpose here is
टू एक्सप्लेन कि आप कोड को कैसे छोटे से छोटा कर सकते हो, जो आपने कल पूछा था पाइपलाइनिंग वाला कॉन्सेप्ट, कम से कम लाइन में, तो वो प्रोसेस आपको ऑलरेडी पता है, तभी मैंने यहाँ पे आउटलायर्स को भी नहीं चेक किया. तो ऑल द मच थिंग्स कैन बी डन हियर, सो आई एम जस्ट गोइंग विद द वेरी बेसिक वन. ठीक है. So the purpose here is you can create such kind of functions जो आपका जितना भी data cleaning है A to Z with respect to that data, you can create such functions and you can call those functions here. तो उसमें आप n number of चीजें डाल सकते हो and you know step by step, because line by line execution होता है, ये होने के बाद it will come to this line, ये होने के बाद it will come to this line. So just maintain the process flow कि कहीं पे कोई चीज unidentified ना हो and the data is into the proper process flow. ठीक है. So I've defined this function which will look after creating dummy variables, okay, making train test split part and dropping certain columns जो मुझे नहीं चाहिए. तो what I'm returning here, x train, y train, x test, y test. So when I'm calling this function dc, मेरे data frame का नाम क्या है, df. So when I'm calling my dc onto my data frame, so what it will result me, what it will give me actually, it has given me these values here. ठीक है. So these values are ready to use for my algorithm, so that I can take these values and they are ready to be passed into the algorithm and I can proceed with them. तो इस cell number 2 में do you have any questions? Basic है सब कुछ. ठीक है. So once I execute this code, okay, let me go to it. Okay, so it has been executed and once I get my output here, so this is my x train and y train. So x train में I'm having all the columns into the numerical form plus वही column है जो मुझे चाहिए and respectively y train है मेरे पास survived and this is x test में वही सब columns and all into the proper format and survived column is also there for my y test. ठीक है. So this is my training and testing data जो I will be taking further for my algorithm. ठीक है. Now we'll be making a pipeline. तो पाइपलाइन क्या करता है, सी आई विल बी यूजिंग यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट इंप्यूटर है फ्रॉम sklearn, आई विल बी यूजिंग द एल्गोरिथम, आई विल बी यूजिंग स्टैंडर्ड स्केलर, आई विल बी यूजिंग ग्रिड सर्च सीवी एंड आई विल बी आल्सो यूजिंग पीसीए. अगर इनको इंडिविजुअली हम करते हैं तो कोड गेट्स टू लेंदी, राइट. आप पहले इसको कॉल करोगे, इसके लिए ऑब्जेक्ट बनाओगे, फिर फिट प्रेडिक्ट करोगे, फिर इसको कॉल करोगे, इसके लिए ऑब्जेक्ट बनाओगे, सिमिलरली फॉर दिस वन एंड सिमिलरली फॉर दिस वन. तो what I've done here, तो इस चीज के लिए हमारे पास पाइपलाइन होती है from sklearn. So from sklearn.pipeline, I've imported pipeline and as the name suggests, you just tell the steps कि पहला step ये, दूसरा step ये, तीसरा step ये, fourth step ये. It will take care of all the steps itself. You just have to tell कि this is the process flow and ये but you have to take care कि ना अब जो यहाँ पे आपका second में output जाएगा, that should be relevant. हाँ जी. Okay. So I've done the necessary imports. So pipeline belongs to the pipeline from sklearn and this is your imputer. इसका काम क्या है, जो आपकी missing values है, अभी तक हम क्या करते थे, we used to do it ourselves by looking for certain if else condition free लेने करके. Now this function is from sklearn.impute and it will just fill the missing values. I will have to call the function, I will have to pass on the data and it will fill the missing values. Okay, so I'm calling a simple imputer. It will take care. इसमें multiple तरीके होते हैं. You can give mean, median. You can give your own custom values as well. We see them how we can take them. So this is used for your. This is as a predefined function जो आपका missing value treat करेगा. Rest all आपको पता है what are these for. ठीक है. Now what I have done here, I'm calling the imputer. So imputer आपका जो missing value treat करेगा. So you need to call this simple imputer. एंड देन इसमें दो पैरामीटर जाएंगे, आपकी मिसिंग वैल्यूज कौन सी है. सो वी हैव मिसिंग वैल्यूज ऑलवेज एज np.nan. सिंपल स्टैंडअलोन nan नहीं जाएगा. यू नीड टू टेल दैट योर मिसिंग वैल्यूज आर np.nan एंड आपने कौन सी स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है टू रिप्लेस द मिसिंग वैल्यू. यू वांट टू अप्लाई मीन, तो ये अगर फॉर एग्जांपल अभी हमने जैसे एज के लिए ट्रीट करना, तो ये एज कॉलम का मीन लेगा, उससे रिप्लेस कर देगा. अगर सैलरी कॉलम है, सैलरी का मीन लेगा, उससे रिप्लेस कर देगा. तो इट विल गो फॉर अ पर्टिकुलर कॉलम. You cannot give your own function, you can give your own value, only value. Function नहीं दे सकते यहाँ पे,
फंक्शन देना है तो जस्ट डोंट गो फॉर इम्प्यूटर, डिफाइन योर ओन फंक्शन। फॉर इम्प्यूटर यू विल नॉट गिव द फंक्शन, आप स्ट्रैटेजी दे दीजिए या फिर मीन दे दीजिए, मीडियन दे दीजिए, मोड दे दीजिए, या फिर यू कैन गिव अ कांस्टेंट ऑफ योर ओन। फिर आप फिल एन ए करके, जो हम फिल एन ए में करते थे ना, सेम प्रोसेस, देन फिल एन ए लेट्स से 30 मुझे रिप्लेस कराना है, बट नॉट योर ओन फंक्शन। ठीक है, सो यहाँ पे ये जिस भी कॉलम पे जाएगा इट विल आइटरेट थ्रू ऑल द कॉलम्स वन बाय वन। इट विल लुक कि इज देयर एनी मिसिंग वैल्यू, एंड इफ इट इज देयर देन हमने स्ट्रैटेजी क्या दी है, मीन। सो उसी फीचर का इट विल टेक आउट द मीन वैल्यू एंड इट विल रिप्लेस दिस नैन विद द मीन ऑफ दैट पर्टिकुलर फीचर। तो जो आपको वन ऑन वन खुद से चेक करने वाली चीज थी, दैट इज बीन टेकन केयर बाय द सिंपल इम्प्यूटर। ओके, बट अगेन ये बेसिक अप्रोचेस पे जाता है, and once you, if you try to treat the missing values yourself, you can be much more logical, but then that is not predefined, उसमें you have to come with your own code, your own ideas। ठीक है, तो ये सिंपल सीधा सा फंक्शन है, इसमें आपकी 2-3 चीजें अलाउड है, मीन अलाउड है, मीडियन अलाउड है एंड मोड अलाउड है, एंड अ कांस्टेंट वैल्यू जो हमारा सीधा फिल एन ए में भी होता है, दैट फिल एन ए एंड 34 और 35 जो भी आपने वैल्यू ट्रीट करानी है। ओके, yeah, it will go to each column into your data जो भी आप ट्रेनिंग के लिए दोगे, and it will look for a np.nan value, and if that np.nan value is there, it will take that feature, जिस भी feature में वो missing value है, and it will replace that feature, जो उस feature में missing values है, it will replace them with the mean of that particular column। वही तो बताया मोहित, अगर 5 कॉलम है आपके पास, 5 कॉलम में मिसिंग वैल्यूज हैं, तो ये अगर 5 कॉलम में मिसिंग वैल्यूज है तो ये पांचों कॉलम पे जाएगा वन बाय वन। पहले जाएगा कॉलम 1 पे, उसमें मिसिंग वैल्यू देखेगा, अगर उसमें मिसिंग है तो कॉलम 1 का मीन, क्योंकि हमने क्या दिया मीन, तो कॉलम 1 का मीन निकालेगा एंड इट विल पुट दैट हियर। कॉलम 2 पे जाएगा, जब 1 की सभी वैल्यूज ट्रीट हो जाएंगी, कॉलम 2 पे जाएगा, कॉलम 2 में अगर नैन वैल्यू है तो कॉलम 2 का मीन निकालेगा और उसको नैन की जगह पुट अप कर देगा। अगर नहीं है मिसिंग वैल्यूज, इट इज गुड टू गो, लेकिन अगर मिसिंग वैल्यूज मिल गई है तो जो हमने स्ट्रैटेजी दी है उस पर्टिकुलर फीचर के लिए इट विल टेक आउट द मीन वैल्यू। ठीक है, जैसे हम करते थे ना, हमने किया था फिल एन या रिप्लेस दैट पर्टिकुलर विद द मीन ऑफ दैट कॉलम, तो चीज वही हो रही है। आपको खुद से एक्सप्लिसिटली वो कोड नहीं लिखना पड़ रहा, इट इज टेकन केयर बाय द सिंपल इम्प्यूटर फंक्शन। कोई कंफ्यूजन इसमें सिंपल इम्प्यूटर में? एक कॉलम में मीन, एक में नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। वही फिर अगर आपने अलग अलग तरीके से करना है, देन यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। इम्प्यूटर में एक टाइम पे एक चीज जाएगी, या तो मीन लो या मोड लो या मोस्ट फ्रीक्वेंट लो। तभी मैंने इनिशियली आई डोंट फाइंड इट ऑफ मच यूज। आई डोंट फाइंड ग्रिड सर्च का काम अलग होता है रजत। ग्रिड सर्च हैज नथिंग टू डू विद द मिसिंग वैल्यूज। ग्रिड सर्च का काम है, ग्रिड सर्च का काम है क्या, इट विल टेक योर एल्गोरिथम एंड इट विल डू अ फिट प्रेडिक्ट। क्या इसमें फिटिंग हो रही है सिंपल इम्प्यूटर में? क्या इसमें प्रेडिक्शन हो रहा है? इट इज यूजिंग फिल एन ए मेथड इन द बैकएंड। जो आपका आइटरेशन है, इफ एल्स वाली कंडीशन है, दैट इज ऑल डन इन द बैकएंड ऑफ सिंपल इम्प्यूटर। ग्रिड सर्च फिर आप यू आर नॉट गुड, आपकी अंडरस्टैंडिंग ग्रिड सर्च की गलत है। ग्रिड सर्च विल गिव यू प्रॉपर पैरामीटर्स, उनको फिट करके उन पे स्कोर कैलकुलेट करके। हाउ विल यू कैलकुलेट द स्कोर इन केस ऑफ सिंपल इम्प्यूटर? अच्छा, ओके। यहाँ पे व्हेन यू यूज अ सिंपल इम्प्यूटर यू कैन जस्ट गो विद वन स्ट्रैटेजी। अगर आपने, तभी आई डिड नॉट टेल इट बिकॉज आई डोंट फाइंड इट ऑफ मच यूज। So it's better to you treat your values yourself to be more logical, and you can use multiple ways. इसमें you just have कुछ गिनती की strategies and then they are the only options you can go with। ठीक है, अगर आपने कोई कांस्टेंट देना है तो उसके पास हमारे पास उसका ना सीधा सीधा फिल एन ए मेथड होता है। फिल एन ए में भी तो हम क्या देते हैं, कांस्टेंट ही देते हैं, that I want to have this value to be given as my missing value replacement। ठीक है, बट जैसा भी है, दिस इज द सिंपल इम्प्यूटर फंक्शन फ्रॉम sklearn, जो आपकी वैल्यूज जो भी आपकी पूरे डेटा में जाएगा वन बाय वन टू एवरी फीचर। इट विल लुक फॉर अ मिसिंग वैल्यू, इफ इट इज प्रेजेंट फॉर दैट पर्टिकुलर फीचर मीन विल बी कैलकुलेटेड या मीडियन या मोड, एंड वो आपकी नैन वैल्यू को फिल कर देगा। ओके, एंड दिस विल बी डन परमानेंटली।
Now once we have defined the imputer part, okay, मैंने बता दिया कि I want to use this algorithm या I want to use this object, इस object में ये सब कुछ store है to treat my missing values. I've defined my classifier, I want to use random forest classifier है, कुछ नहीं लिया मैंने यहाँ पे. Now I'm making a pipeline. So as I told you, what is pipeline? Pipeline is a series of steps. कि पहले आपने ये करना है, सेकंड आपने ये करना है, थर्ड आपने ये करना है. तो आपने जैसे ग्रिड सर्च क्या करता था, ग्रिड सर्च मुझे सेट ऑफ पैरामीटर्स खुद से खुद एग्जीक्यूट करके देता था, राइट? I don't have to do fit every time, I don't have to do predict every time, I don't have to calculate score every time. इसने क्या किया था, ग्रिड सर्च ने सारा काम मेरा अपने आप किया था, राइट? तो सिमिलरली पाइपलाइन भी इज सिमिलर टू दैट कि आप फॉर एग्जांपल व्हाट यू विल डू, आइडियली क्या करते हैं, आप पहले इम्प्यूटर को लेते, अपने डेटा फ्रेम पे इम्प्यूटर को लगाते, मिसिंग वैल्यू हटाते, फिर आप लेट्स से आपने स्टैंडर्ड स्केलर लगाना, फिर स्टैंडर्ड स्केलर को फिट प्रेडिक्ट करते, आपने पीसीए लगाना, फिर पीसीए को फिट प्रेडिक्ट करते, एंड देन आप लास्ट में क्लासिफायर पे जाते, राइट? एवरीथिंग वाज टू बी डन बाय यू. नाउ व्हाट इज टेकन केयर, अब आपने सीधा क्या किया, आपने पाइपलाइन को कॉल किया, ठीक है, एंड पाइपलाइन में इट विल टेक, इनिशियली ये जाएगा टपल की फॉर्म में, and into that tuple it will take list of tuples. So this is your pipeline function. Just a second. So this is your pipeline function and into this you have a list here. ठीक है, इस लिस्ट में आपने जो भी फंक्शन देने हैं वो आपके टपल की फॉर्म में जाएंगे. तो इनिशियली सबसे पहला स्टेप क्या होगा, should I go with the classifier, should I go with standard scaling, should I go with the PCA, should I go with missing value treatment? क्योंकि बाकी जो डेटा क्लीनिंग पार्ट है वो मैंने यहाँ पे I've already taken care of that, right? तो only what thing is left out now? Only my data cleaning part, right? So what I'll do is I've cleaned much of my data here. Now I just want to treat missing values using simple imputer. क्योंकि predefined function है, तो imputer क्या था, ये particular object, I'm calling this imputer here, and you have to give this name. It is mandatory कि जो आप pipeline बनाओगे पहले तो वो जाएगा आपकी values को list में लेगा, and then every value has to be given in the form of tuple. उस tuple में this will you have to give a name for that कि आप जो भी function call कर रहे हो what this function is referring to. You can give any name, कोई मैंडेटरी नहीं है, आप इम्प्यूटर दो या कुछ भी लिख सकते हो, ओके जो, बट इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू गिव अ नेम हियर एट व्हाट दिस इज रेफरिंग टू, दैट इफ यू वांट टू कॉल इट एट लेटर स्टेज. ठीक है, तो दिस इज माय प्रोसेस फ्लो. गिवन आई हैव क्लीन माय डेटा, गिवन मैंने एक्स्ट्रा कॉलम्स हटा दिए, आई हैव डन द नमी एनकोडिंग पार्ट. नाउ फर्स्ट इज आई वांट टू हैव माय मिसिंग वैल्यूज ट्रीटेड. तो ये पाइपलाइन में मैंने पहला स्टेप ये बताया, फर्स्ट टपल ट्रीट माय मिसिंग वैल्यूज. मिसिंग वैल्यू ट्रीट होने के बाद आई वांट कि अब मेरा डेटा क्या होना चाहिए, स्केलिंग, मेरे डेटा पे स्केलिंग होनी चाहिए. दिस इज व्हाट माय सेकंड स्टेप. So once scaling is done, then I'm asking that decompose my data into two components. So this is your third step. And after that, what you are telling that once the missing values are created, once your scaling is done, once your decomposition is done, what you have to do now, fill this, apply this classifier. So this is what fourth step. तो आपने प्रोसेस फ्लो बताया, इंप्यूटर के लिए यहाँ से आया, स्टैंडर्ड स्केलर यहाँ से आया. सी यू आर नॉट डिफाइंड एनी ऑब्जेक्ट फॉर स्टैंडर्ड स्केलर, मैंने सीधा क्या किया, फंक्शन को कॉल किया. सिमिलरली आई एम नॉट डिफाइंड एनी ऑब्जेक्ट फॉर पीसीए, मैंने सीधा पीसीए को कॉल किया यहाँ पे. सो आई एम यूजिंग पीसीए स्टैंडर्ड स्केलर डायरेक्टली फ्रॉम हियर. एल्गोरिथम के लिए आई एम यूजिंग क्लासिफायर. यू कैन गिव द एल्गोरिथम नेम आल्सो डायरेक्टली, जैसे मैंने स्टैंडर्ड स्केलर दिया, पीसीए दिया, ऐसे ही आप रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर आप यहाँ दे सकते हो, इट विल नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम. तो माय डेटा विल बी क्लीन फर्स्ट, मिसिंग वैल्यू ट्रीट हो जाएंगी, फिर स्केल हो जाएंगी. स्टैंडर्ड स्केलर क्या करेगा, आपका यूनिट वेरिएंस, जीरो मीन, उसमें आपका डेटा को चेंज कर देगा, राइट? देन उसके बाद पीसीए किया, एंड पीसीए में एज वी स्टडीड यस्टरडे कि पीसीए लगाने से पहले इट इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप कि आप क्या करोगे, डेटा को स्केल करना जरूरी है, राइट? तो इसलिए पहले हमने स्केल किया डेटा को, एंड देन आई वेंट फॉर पीसीए, एंड देन once the components are decomposed into two, assuming I was having huge number, तो I'm just telling कि what all thing you can come up with. It is not mandatory कि आप scaling हमेशा डालोगे, PC हमेशा डालोगे. You can do something else also. ठीक है, and then you are coming up with the classifier. Then you want to implement the classifier here, and then इसके लिए आपने क्या object बनाया? The object name is pipeline. Okay? इसमें कोई confusion आपको?
So once I've defined my pipeline object, now I want to use grid search also. Grid search किस पे जाएगा? It will be applicable onto my algorithm. ठीक है? So what I can go for standards के लिए अगर इसके कुछ मेरे पास parameters होते, I could go for this one अगर इसके कुछ parameters होते, but I'm whatsoever, it will scale everything. It will scale everything. Categorical है लेकिन they will be always there. It will scale everything. जो भी मीन मीडियन निकल के आएगा फॉर्मूला वही रहेगा, जो भी मीन मीडियन निकल के आएगा इट विल गेट स्केल्ड डाउन. आई डिड नॉट, ये इट्स नॉट यू विल सी डेटा आप एक्स पूरा फीचर एक लेके चलोगे. व्हेन डिड वी से कि हम पहले अलग अलग करेंगे, कैटेगोरिकल अलग करेंगे, रिग्रेशन अलग करेंगे? वी नेवर डू दैट. कंप्लीट डेटा इज स्केल्ड, even if it is having continuous values, even if it is having categorical, आप पूरा डेटा एक साथ स्केल करोगे. टारगेट को नहीं, टारगेट को will not touch, but complete X features will be taken. नहीं नहीं, he is saying that 0 1 है तो 0 1 के लिए कैसे स्केलिंग हो जाएगी? I think he was asking the same. तो जो भी होगा आपकी X डेटा में, even if it is categorical या if it is a continuous value, अगर आपने स्केलिंग करनी है, it will be happening onto the complete data. ठीक है, वो चाहे उसमें कुछ भी हो, विल नॉट टेक अप y एनी टाइम बट विल ऑलवेज टेक द कंप्लीट x. ठीक है, सो अब डिफाइन द प्रोसेस फ्लो. जो प्रोसेस फ्लो मुझे चाहिए, imputer followed by standard scaler followed by PCA and followed by the algorithm. Now I also want to have a grid search applied onto my random forest classifier. मुझे इसकी multiple values check करानी है. So when you use a pipeline, grid search में parameters देने का तरीका थोड़ा बदल जाएगा. Ideally हम क्या करते हैं, we just call this parameter n estimators, we just call the maximum depth और या बाकी जो parameter है, right? But when you use grid search CV with pipeline, तो then you have to call this name. अगर आप यहाँ पे CLF दोगे, whatever name you give, then you have to tell that जो ये parameters हैं, they are referring to what? So they are referring to this classifier. And classifier मेरी pipeline में किसको refer कर रहा है? This random forest. Similarly, जो मेरा max depth parameter है, वो किससे आया है? From this classifier. And classifier again referring to what? This random forest into my pipeline. ठीक है, अगर for example यहाँ पे मेरे पास दूसरा algorithm होता, then what would happen here? I just call this name. I will have to call this name. इस name को call करके I will have to say PCA a double underscore and the parameter name. बाकी values हमेशा dictionary की form में जाएंगी. Grid search में key values you can give multiple values, but only thing जो additional होगी, जो आप यहाँ पे नाम दोगे, जो आपने यहाँ पे tuple बनाए हैं, जो भी आपने steps बताए हैं, step 1 step 2, whatever name you have given to them, you need to call the functions or you need to call the parameters by the given name. आप standalone max depth call करोगे या standalone n estimator call करोगे, it will throw you error. It will not execute it. ठीक है, so this is important. तो ये थोड़ा change होता है grid search CV में. If you want to apply grid search CV onto a pipeline, only this is getting changed. So only this is something extra. If I give another name here, I will have to use the same name. I cannot use a different name. Then parameter जो आपका grid search CV है, it will not be able to identify कि ये जो parameters हैं, ये pipeline में किससे belong करते हैं. ठीक है, is it clear till here? ठीक है, now once I've defined my pipeline, I have defined कि I want to go with these parameters for this particular algorithm. तो फिर the rest part is same. I'm calling grid search CV here. Grid search में again what will go? Your classifier. So यहाँ पे मुझे multiple चीजें चलानी है. From where you have given list values in estimator and depth. ये हमने किया तो था निष्कर्ष random forest में. What are these n estimators everyone referring to? What are they referring to? And what this max depth is referring to? ठीक है, when we did grid search CV निष्कर्ष, हमने किया था कि whatever जो भी algorithm आप use करोगे, उस algorithm के जो भी parameters होंगे, if you want to try for multiple,
then you will have to pass these multiple values. So these parameters will be taken for the grid search CV and they are belonging to what? They are belonging to this algorithm. तो हमारे random forest के parameters हैं n estimator, maximum depth and बाकी और भी parameters हैं which we can try. Grid search का काम क्या होता है? निष्कर्ष मुझे ये बताइए. Why do we use grid search? अरे बताओ तो. Why do we use grid search? हाँ जी निष्कर्ष, why do we use grid search? डिफरेंट वैल्यूज पे हमें ट्राई कराना है ना कि कौन सा पैरामीटर अच्छे हैं. जब मेरे पास 15 पैरामीटर मुझे ट्राई कराने हैं तो क्या मैं 15 बार खुद से एग्जीक्यूट करूं या सिंपल ग्रिड सर्च को बोलूं कि ये 15 पे ट्राई करो एंड सी व्हिच इज गिविंग मी द बेस्ट रिजल्ट. तो वैल्यूज कैसे जाएंगी? लिस्ट की फॉर्म में तो जाएंगी हमेशा. ठीक है. तो यहाँ पे आई वांट टू ट्राई फॉर दीज पैरामीटर्स. यू कैन इंक्लूड मोर, you can increase their values, you can come with more parameters and respectively more values. ठीक है. So यहाँ पे I'm all set. I've defined my imputer, I've defined my classifier, I've defined my pipeline, that is this should be my process flow, and for the grid search CV I've defined my parameters. Now what I need to call is I need to call grid search CV. तो grid search में पहले हम क्या देते थे रेगुलर में? classifier या जो भी मेरा algorithm होता था. Now since I'm having couple of steps to be done, so I will be calling this pipeline here. So I'll be calling this pipeline. जब आप इस pipeline को call करोगे, then your steps will be followed. तो पहले आपका imputer run होगा, फिर standard scaler run होगा, फिर PCM and the last is your classifier will be executed. And उसमें आप कौन से पैरामीटर बता रहे हो? पैरामीटर ग्रिड जो आपने यहाँ स्पेसिफाई किया है. And CV is again referring to your cross validation. So definitely it is going to take some time. So here I've defined my grid search CV that I want to execute these and these in the following pattern. And उसको मैंने किस में स्टोर किया? ग्रिड सर्च में. सो नाउ थिंग्स आर रेडी. आपका स्ट्रक्चर बन गया है यहाँ तक. नाउ वेर यू वांट टू, नाउ यू हैव टू फिट डेटा टू दैट स्ट्रक्चर. ठीक है. यहाँ पे हमने क्या किया? हमने स्केलेटन क्रिएट किया. यहाँ पे भी हमने स्केलेटन क्रिएट हो गया. नाउ इनटू दैट स्केलेटन यू हैव टू गिव इन डेटा. एंड व्हाट डू वी गिव ऑलवेज इज आर ट्रेनिंग डेटा. एक्स ट्रेन वाई ट्रेन. एक्स ट्रेन वाई ट्रेन हमारा कहाँ से आया था? फ्रॉम दिस फंक्शन. क्योंकि हमने यहाँ पे क्या रिटर्न कराया था? एक्स ट्रेन वाई ट्रेन. तो जो ये वैल्यूज मेरी यहाँ से रिटर्न होके आई. ओके. सो व्हेन आई गिव एक्स ट्रेन, इसमें मेरा क्या था? एज मिसिंग वैल्यू थी एज में यहाँ पे. अपार्ट फ्रॉम दैट, अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज, एज वाज हैविंग मिसिंग वैल्यूज. तो अभी क्या करेगा? बिकॉज व्हेन आई एम फिटिंग हियर एक्स ट्रेन, तो इनटू दैट आई एम हैविंग द कॉलम एज व्हिच इज हैविंग मिसिंग वैल्यूज. तो व्हाट दिस एक्स ट्रेन विल गो इनटू? ये एक्स ट्रेन आपका सीधा इस पाइपलाइन में जाएगा. देन मिसिंग वैल्यूज विल लुक्ड अप. हमारा एज में मिसिंग वैल्यू था, इट विल टेक केयर ऑफ दैट. देन जो हमारा डेटा कंप्लीटली हो गया क्लीन फील्ड मिसिंग वैल्यूज, फिर उसको स्केल कर देगा, फिर उसको पीसीए लगा देगा, डिकम्पोज टू 2 कंपोनेंट्स एंड देन इट विल पुट अ रैंडम फॉरेस्ट. सो एंड उसके लिए बिकॉज आप फिटिंग करते हो, आपने प्रिडिक्शन भी करनी है. दिस इज व्हाट योर मॉडल इज गेटिंग ट्रेन्ड फॉर ऑल दीज स्टेप्स एंड ऑन टू द रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर. ठीक है. You need to have your target as well. ये step as it is जो हमारा regular grid search में था, that same step. So I want to work on to my X train and Y train. So when I execute this, now you see what have you gotten? You have gotten cross validation 5 जो आपने यहाँ दिया grid search define करते time. It has told me the steps की जो आपने estimator लिया है. आपने estimator में क्या लिया? pipeline. उसके steps क्या थे? पहले क्या हुआ? simple imputer. Then आपने क्या किया है? scaling. Scaling के बाद आपने क्या किया है? PCA. Okay, and after PCA what is done here? You have used random forest classifier. और random forest में हमने कौन कौन से पैरामीटर लिए? पैरामीटर दिया था random forest के लिए. So it has taken those 10, 12 and 150 and 200. ठीक है. So it has told me the steps. You see this, it's given here that these are your steps for what? जो आपने pipeline दिया है. So all these steps are followed. Step number 1, step number 2, step number 3. And the fourth step is my algorithm part, जो कि मैंने parameter से specify किया algorithm के parameters. They have been taken into consideration, and because मैंने cell run कर दिया था, so my algorithm, my grid search using random forest and all these have been trained. ठीक है. So now I can do the prediction part here. So उससे पहले let us just know what are the best scores. So best parameters
and best score, you are all aware of this concept. So when I'm displaying my best score and best parameters, it told me कि जो आपका maximum depth है, that should be 12 and estimator क्या है 150 and उसके according आपका result क्या आ रहा है, best score का result क्या आ रहा है 64%. And then I've done the prediction क्योंकि grid search क्या था, what was grid search? Grid search was an object which was referring to जिसपे हमने एक skeleton बनाया and उस object में हमने अपना data train कराया, right? So I will have to use the same object in order to do the prediction. तो prediction के लिए as usual we have to give what? Xtest. मैंने यहाँ पे dot predict function call किया, Xtest किया and I'm storing them into pred. So when I print the pred here, it is coming out to be 1010. Survived, non-survived. And this is your classification report, which you get to know what your results will be. This comes out to be a classification report. Accuracy is low here. यहाँ पे accuracy is different, 64. Because इसने यहाँ किस पे accuracy calculate की? Why this accuracy is different? Can you tell me why it is 59 and why it is 64 here? Why these two results are different? Why are they not same? Are you guys here? Nobody is answering. No. Above is predicted. Xtest that way. No, not exact answer. Why? From where will you put best score in your algorithm on it? कैसे put up करेंगे? We don't have that option कि हम वो score उठा के अपना algorithm put करें. We don't have that thing. हाँ जी, anyone? दिशा आप बताइए. अच्छा, you just told me. No, I'm asking why these two results are different. The very first thing. Why these two results are different? अब मैंने तो सेम एल्गोरिथम यूज किया ना जो मैंने ग्रिड सर्च में डिफाइन किया. यूजिंग दैट मैंने उसी को लेके प्रेडिक्शन किया है, राइट? तो अब मैंने अलग से एल्गोरिथम डिफाइन ही नहीं किया, सो दैट आई नीड टू गिव दीज पैरामीटर्स. मैं वही एल्गोरिथम लेके आई एम यूजिंग द सेम प्रेडिक्टेड वैल्यूज एंड द एक्चुअल वैल्यूज टू इवैल्यूएट द मॉडल.
So I'm not changing the trees at any point. Neither I'm changing any other parameter. And neither I'm, how do I select? No. No. नहीं मोहित, इसलिए नहीं. कनिष्का आप बताओ. Why is it happening so, Kanishka? रजत आप बताओ. अच्छा, रजत तो has been answering. Who is not answering? Pratik is not answering. Gagan is not answering. Naveen is not answering. आप आए सही पॉइंट पे नवीन. And this is what, Naveen? Right? तो हम ग्रिड सर्च में हमने क्या लिया था, एक पैरामीटर क्रॉस वैलिडेशन. हम किस पे करते हैं वो? ट्रेनिंग डेटा. तो क्रॉस वैलिडेशन में क्या होता है, आपका डेटा उतने फोल्ड्स में डिवाइड हो जाता है, उतने फोल्ड्स पे मॉडल ट्रेन होता है, इवैल्यूएशन होती है और एग्रीगेशन करके आपको एक एक्यूरेसी मिल जाती है. राइट? तो एक बार 12 और दूसरे पैरामीटर्स के साथ, हर वन ऑन वन पैरामीटर के साथ दिस प्रोसेस इज फॉलोड. कि अगर 5 फोल्ड्स लिए हैं मैंने, तो 4 फोल्ड्स पे ट्रेनिंग होके 5th फोल्ड पे क्या होती है, प्रोडक्शन, इवैल्यूएशन. हर एक फोल्ड इज टेकन एट अ टाइम फॉर प्रोडक्शन. राइट? तो 5 फोल्ड्स में मेरा एक पैरामीटर 5 बार एग्जीक्यूट होंगे. तो उन 5 को एग्जीक्यूट करके आई विल एग्रीगेट देम एंड आई विल गेट वन रिजल्ट. तो ये क्या है वो, और किस डेटा पे हम ये सब करते हैं? ट्रेनिंग डेटा पे. क्योंकि हमने जब ग्रिड सर्च को ट्रेन किया, व्हेन वी डू अ फिटिंग पार्ट ऑन द ग्रिड सर्च, हमने क्या लिया था? व्हाट वी डू हियर? एक्स ट्रेन वाई ट्रेन. तो जो ये क्रॉस वैलिडेशन वाली प्रोसेस है, ये किस पे लगी थी? एक्स ट्रेन वाई ट्रेन पे. एंड जो एक्स ट्रेन वाई ट्रेन पे लगी, तो आपका एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन 5 फोल्ड्स में भी डिवाइड हुआ. 4 फोल्ड्स पे ट्रेनिंग हुई, 5th पे टेस्टिंग हुई, स्कोर निकल के आया. देन अगेन जो साइमल्टेनियसली 4 फोल्ड बचे थे, उन पे भी एक बार टेस्टिंग हुई, रिजल्ट्स वर कैलकुलेटेड. राइट? तो एग्रीगेशन करके 150 एस्टिमेटर्स विद डेप्थ 10, उनका स्कोर निकाला. एग्रीगेशन करके 150 ट्रीज विद 12 मैक्सिमम डेप्थ, स्कोर निकाला. Similarly, 200 estimators with 10 maximum depth का स्कोर निकाला. 200 estimators with 12 का मैक्सिमम स्कोर निकाला एग्रीगेशन करके. तो जिस भी कॉम्बिनेशन के साथ आपका स्कोर मैक्सिमम आया, तो इसने मुझे बेस्ट स्कोर किसका दे दिया? इट हैज गिवन मी बेस्ट स्कोर फॉर दैट पर्टिकुलर वन. एंड दिस इज बेस्ड ऑन व्हाट? योर ट्रेनिंग डेटा. क्योंकि व्हाट आई हैव गिवन हियर, जो सीरी परफॉर्म हुआ है, क्रॉस वैलिडेशन हैज बीन डन ऑन टू व्हाट? एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन. राइट एवरीवन? किया था ना हमने क्लास में? भूल गए सभी आप. भूलना नहीं है, याद रखना है. ठीक है? तो दैट इज वाई माई रिजल्ट आर डिफरेंट हियर. क्योंकि ये मेरा क्या है? दिस इज व्हाट माई ट्रेनिंग एक्यूरेसी गिवन बाय द क्रॉस की सीवी से जो निकली है, यूजिंग दिस पैरामीटर्स आई हैव गॉटन दिस एक्यूरेसी. यस. सो जो आपका बेस्ट स्कोर है, जो आपका क्रॉस वैलिडेशन से डेटा डिवाइड हुआ है, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, जो हर डेटा एक टाइम पे यूज हुआ फॉर ट्रेनिंग एंड एट वन टाइम इट वाज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन, तो उनका एग्रीगेशन करके दिस इज गिविंग यू बेस्ट स्कोर. सी मैंने यहाँ पे वर्बोसिटी पैरामीटर नहीं डाला. अगर वो होता तो यू माइट हैव, आप पकड़ जाते. अगर मैं यहाँ वर्बोसिटी देती हूँ, यू सी यू गेट दीज. कि नाउ अब आपका डेप्थ 10, 12 के साथ इट विल बी एग्जीक्यूटेड 5 टाइम्स with both values. So 12 with 150, आपका 5 टाइम एग्जीक्यूशन हुआ. I think it is more.
So this was 1, 2, just a second. From here. So from here till here. This was what? How many times? This was CV1, CV2, CV3, CV4, CV5. आपका जितनी बार भी आपने CV लिया, for every parameter it was tested, and then aggregation perform होके क्या हुआ? चीजें add up हुई, 5 folds for each 4 candidates. 4 candidates क्या है आपके यहाँ पे? These are your 4 candidates, 150, 200, 10 and 12. तो इनके साथ आपका मॉडल ट्रेन हुआ है ना? 10 with 150 estimated, 10 with 150, so 5 times this has happened. First fold, second fold, third fold. ठीक है? So this is your training accuracy. This is your training accuracy given by the grid search. और यहाँ पे हम किसकी हमने क्या किया है? What is this for? Pred is what? आपने जो prediction किया है onto X test. तो आपने जो trained model use करके जो prediction की है onto X test, वो है हमारा Pred, and which is different. So this is my unseen data. So obviously my model will behave differently training के comparison में. So when I'm looking for those unseen results, so I'm getting this output. And there is slight overfitting happening here. You see 5% variation is happening here. So slight overfitting is there. क्योंकि आपका score क्या है 59 और यहाँ पे क्या है 64. So some sort of overfitting is happening here. It has reduced to 62 because मैंने random state fix नहीं कर रखा. So it is changing every time. Now see I've got a good model. Now because I have executed it, तो मैं भी पता नहीं कौन सा point pick up हुआ. I did not give random state. So if I freeze that random state, my results will be the same. Initially क्या था आपका overfitted था, ये आपका 64 around था and ये 59 था. Now I've gotten a very good model. मतलब very good in the sense कि आपका testing score भी वही है, similar training score भी वही है. There is no much difference. So this is a good model, neither overfitted, neither underfitted. Although we need to improve it, but yeah, comparing on the basis of overfitting, underfitting, this is a good model. ठीक है? Is this clear now? So this was all about pipeline. See, pipelining में हमारा कितने लाइन का कोड आ गया? It just summed out, very few. Let me remove these extra things. So आपकी गिनती का line code आ जाता है when you use pipeline. So it makes your code very short. Let me remove the verbose. Okay, let me run all these again. So it will run all of my cells one by one. Yes, if you're not using grid search, then you'll have to fit your model. फिर आप यहाँ पे आप क्या दोगे? Classifier. Or no, not classify. You'll give your pipeline only. क्योंकि pipeline आपने pipeline तो लगाना ही है ना. फिर आप क्या करोगे? सीधा pipeline dot fit. फिर आप grid search dot fit कीजिएगा. What you will do is pipeline dot fit. क्योंकि when you see pipeline, so you have a fit, you have a predict, and you have transformation if you want to transform. लेकिन fit option is there for. So this was grid search CV. लेकिन pipeline अगर आपने नहीं use करना, then simple fit will help you out, and dot predict will help you out to do the prediction part. ठीक है? So कितनी लाइन में हमारी मल्टीपल चीजें? It is a 7 line code. 7th line में what I'm calculating my result here. इसमें हमने क्या क्या किया? We have defined a function जो मल्टी लाइन्स का कोड होता था into single function. इसमें आप और भी चीजें डाल सकते हो. ठीक है? And this single has taken care of multiple things. जिनके लिए मुझे 4-5 लाइन एक्स्ट्रा लिखनी पड़ती, it's all done all into a single line. तो pipeline is very easy, मुश्किल नहीं, because you are already aware of these concepts. तो बस इसमें है नहीं, it tells you कि आपने कैसे क्या डालना है. That's it, nothing extra. कोई confusion है आपको pipeline में? Anyone? Okay. So what I'll do is I'll share this code with you. ठीक है? And just do the hands-on part. Just give me a second.
You can apply it onto any data and any number of things, but just be clear कि जो यहाँ से output आया, it is into the desired format कि ये उस पे process चल सके. Okay. If I give my algorithm first classifier मैं पहले दे देती हूँ and then I give them tutor, definitely it will throw error. आपका missing values नहीं है, या जो भी आप scaling कैसे करोगे, because you have already fit train आप कर चुके हो. So order matters in case of pipeline. You should keep that into consideration. And if you are using grid search CV, तो जो आप यहाँ पे नाम दोगे, just use those names when you want to check for multiple parameters. Independent, it will not identify. Okay. So just a second, let me mail this and have a look. I'll be having a break. So, and into that break, just have a look onto the code. If you have any doubts, just let me know. Then otherwise, we'll start with lasso and range regression. So I've just mailed you. I've reverted onto the TS explained Excel. So abhi I've sent the mail, just cross check it. Okay? And it is 6. Let's have a break for 10 minutes and then we shall resume. Meanwhile, if you have any doubts into the code, just go through the code, try to understand the process, and then just let me know. Okay? So we'll resume at 6 or 10.
Okay, is everyone here? Are you all here? Shall we start? Okay, so did you have any question into pipelining? Okay. Okay, so let us start with lasso and ridge. So lasso and ridge solves your regression problem. When do we use them? Let's say if our regression models tend to overfit. तो जैसे overfitting के लिए हम क्या करते हैं, these are the algorithms that if when your model is getting overfitted, you can use these regression algorithms and then they will avoid your model to overfit. ठीक है, तो इनको हम L1 L2 regularization भी बोलते हैं. Ideal their names are lasso and ridge regularization techniques. तो one of them L1 and L2, so one of them is used also for feature selection. We'll see how it is used and how does it add penalty and कैसे overfitting को avoid करता है. If a simple linear regression would overfit to a model, lasso and ridge will stop that overfitting to happen. So ये totally different algorithm है. They are nothing add on to the linear regression. अलग से algorithm है जो कि linear regression वाले concept पे ही काम करेंगे. उस वही बेस्ट फिट लाइन होगी, वही my is equals to mx plus c होगा, वही r squared का फॉर्मूला होगा. इसमें एक पेनल्टी टर्म एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है. लेट्स से आपने मुझे रिजल्ट दिया लेकिन आई एम एडिंग अ पेनल्टी ऑल्सो कि इवन इफ यू परफॉर्म बेटर आई विल ऑलवेज डू -1. तो मैं मार्क्स में से आपके -1 रिड्यूस करूंगी ही करूंगी. सो दैट इज सॉर्ट ऑफ पेनल्टी बिकॉज मे बी इफ सम ऑफ यू हैव गिवन 100% करेक्ट आंसर्स, तो -1 करने से you'll not get 100%. So what they do is they add some sort of penalty to your predicted values. जो not your predicted values actually, जो आपका error है उसमें आपकी value आपका penalty डाल देता है so that error is increased. Error increase होगा तो आपका जो overfitting वाली चीज है वो कम हो जाएगी. ठीक है, let us see how does it do it. So वर्किंग सिमिलर है लीनियर रिग्रेशन वाली, इक्वेशन भी वही सेम है, बेस्ट फिट लाइन भी सेम है. ओनली वन थिंग इज एक्स्ट्रा, दैट पेनल्टी, नथिंग एल्स इज एक्स्ट्रा. कॉन्सेप्ट सारा वही है क्योंकि रिग्रेशन एल्गोरिथम है, कॉन्सेप्ट इज ऑल द सेम. ठीक है, इसमें भी रिग्रेशन कोफिशिएंट्स कैलकुलेट होंगे जैसे आपका जैसे आपका लीनियर रिग्रेशन में कैलकुलेट होता है, सेम कोफिशिएंट्स यहाँ पे भी कैलकुलेट होंगे. एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि कोफिशिएंट्स आपके क्या इन्फॉर्मेशन बताते हैं. The coefficients tell you the impact of a unit change. जैसे अगर किसी का coefficient बहुत ज्यादा बड़ा है, symmetry, symmetrical to correlation. अगर coefficient बहुत ज्यादा बड़ा है, it means that particular feature is important for your target. तो वही coefficients आपके lasso and ridge में भी calculate होंगे. So the larger the value of coefficient, the more the power it has to change the predicted response. मतलब variance का concept I will explain you what do you mean by variance here. बट या जितना बड़ा कोफिशिएंट उतना इंपॉर्टेंट आपका फीचर है इन ऑर्डर टू डू द प्रिडिक्शन पार्ट. एंड लेट्स से अगर ओवरफिटिंग कब होगी, व्हेन योर फीचर डोमिनेट्स एट टाइम्स. सो अगर उन कोफिशिएंट्स की वैल्यूज में ही हम चेंज कर दें, we shrink those values, then obviously देयर जो उनकी इंपॉर्टेंस है वो भी रिड्यूस हो जाएगी कंपैरेटिवली. जैसे लॉगरिथम से क्या होता है, आपकी वैल्यूज रीस्केल हो जाती है, तो यहाँ पे लॉगरिथम तो नहीं करे लेकिन वी ट्राई टू रिड्यूस द इम्पैक्ट of that coefficient by using regularization technique. So simple definition, regularization is a method for constraining or regularizing the size of coefficient. तो उनको हम shrink करते हैं towards zero. तो एक regularization towards zero करती है, zero नहीं बनाती, और दूसरी वाली regularization completely zero भी बना देती है. ठीक है, and they are used to reduce overfitting. इनका रिग्रेशन आपका प्रिडिक्शन वही देगा एज इट इज, आई टोल्ड यू, वही आउटपुट देगा, वही इक्वेशंस लगेंगी, लेकिन ओवरफिटेड मॉडल नहीं होने देगा आपका लासो एंड रिज.
ठीक है, let us see how does it do it. So this is your simple equation for your linear regression. It will follow the same trend. आपकी वही actual values, आपकी वही best fit line and वही आपका R squared, that is actual minus predicted values. इनको आगे पीछे लिख लीजिए, one and the same thing because you're getting squared, तो your output will always be positive. तो वही आपका रेसिडुअल एरर कैलकुलेट होगा इनटू नॉर्मल लीनियर रिग्रेशन एज वेल एंड इनटू योर लासो एंड रिज एज वेल. ठीक है, सो हियर रेगुलराइजेशन कैसे काम करता है. सो एज आई हैव बीन टेलिंग की व्हाट डू वी ऐड इज वी ऐड अ पेनल्टी टर्म टू द रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स. तो व्हाट इज रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर? दिस वाज अ रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर कि योर डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड प्रेडिक्टेड, उसका स्क्वायर, सभी वैल्यूज को स्क्वायर करके वी ऐड अप, देन वी कम अप विद द एरर वैल्यू. इट इज नॉट आर स्क्वायर, इट इज जस्ट सिंपल एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड स्क्वायर और सभी वैल्यूज का सम कर दिया जाता है. दैट इज टोटल एरर. सो टोटल एरर ऑफ माय मॉडल, उसमें व्हाट डू वी ऐड अ पेनल्टी टर्म सो दैट जो मेरी प्रेडिक्शंस है वो थोड़ी चेंज हो जाए, इट डज नॉट ओवरफिट. ओके, सो लेट मी टेल. सो द फॉर्मूला कम्स आउट टू बी दिस वन. ठीक है, दिस वन इज L1 रेगुलराइजेशन. L1 रेगुलराइजेशन किसको बोलते हैं? L1 regularization refers to your lasso regression. इसका फुल फॉर्म है least absolute shrinkage, जो भी आप दिख रहे हो यहाँ पे. This is a full form for lasso and इसको हम L1 regularization भी बोलते हैं. ठीक है, so the only difference between these two is very small. तो जैसे अब यहाँ पे हमने क्या किया, this is our predicted value. हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, वैल्यू की प्रिडिक्शन करना. एंड दिस इज व्हाट योर एरर, रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर, जो आपका रेगुलर लीनियर रिग्रेशन में निकल के आता है, जो भी हमने देखा एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड उसका स्क्वायर एंड देन सम करके. सो दिस इज RSS इज रेफरिंग टू दैट वैल्यू, रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स फॉर योर लीनियर रिग्रेशन मॉडल. ठीक है, आपका प्रिडिक्शन होगा यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर रिग्रेशन, आपका एरर्स निकलेगा. एंड दिस इज फ्रॉम योर लासो रिग्रेशन और L1 रेगुलराइजेशन. तो दिस इज इसको बोलते हैं आपका पेनल्टी, जो हम एड अप करते हैं. पेनल्टी स्पेसिफिकली इसको बोला जाता है, बट अगेन फॉर्मूले में क्या आता है, योर एरर, लेट्स से मेरे लीनियर रिग्रेशन का एरर आया 3, then what we'll do is we'll add to it, let's say this is my lambda value. lambda एक आपका constant value होती है. we give this is इसकी value हम खुद देते हैं. so this is not taken by the algorithm, we define the value of lambda कि मुझे lambda कम लेना है, ज्यादा लेना है. so lambda refers to your penalty terminology. ठीक है, lambda आपका penalty decide करता है. अगर let's say अगर if I'm taking lambda 0, क्योंकि अगर लेट्स से व्हाट इज रेसिडुअल वाज 3, माय कोफिशिएंट्स सभी आपके कोफिशिएंट्स क्या है यहाँ पे, सो mx1 प्लस m2x2, जो भी आपके कोफिशिएंट्स कैलकुलेट हुए हैं, राइट, जितने भी आपके फीचर्स होंगे उसके रिस्पेक्टिव आपके कोफिशिएंट्स कैलकुलेट होंगे. सो दीज कोफिशिएंट्स विल बी एडेड अप. सो m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, तो जो भी आपका सम आएगा कोफिशिएंट्स का, दैट इज मल्टीप्लाइड विद व्हाट, दिस lambda. So let's say if the sum is let's say 0.5, ठीक है, and if I'm not giving any penalty, तो lambda कैसे behave करेगा? अगर कम वैल्यू दोगे, it means you are not applying any penalty. आपकी पेनल्टी कम है, जितनी बड़ी lambda की वैल्यू होगी मतलब उतनी ज्यादा सीवियर पेनल्टी जा रही है. मतलब जैसे if I'm saying -1 and if I say -20, तो -1 से आपके स्कोर में ज्यादा चेंज नहीं आएगा, लेकिन -20 करती हूँ तो योर स्कोर्स रिड्यूसेस, राइट. तो मैंने यहाँ पे क्या किया, चलो नेगेटिव है लेकिन इम्पैक्ट वाइज बात करते हैं. तो लेमडा हम नेगेटिव तो नहीं देते, लेमडा इज अ पॉजिटिव वैल्यू, लेकिन जितनी बड़ी वैल्यू देंगे उतना ज्यादा इम्पैक्ट होगा, उतनी ज्यादा पेनल्टी ऐड होगी. जितना कम देंगे उतनी पेनल्टी की इम्पैक्टनेस कम हो जाएगी, इम्पैक्ट कम हो जाएगा. सो लेट्स से अभी मैं यहाँ पे लेमडा लेती हूँ 0. सो इफ आई मल्टीप्लाई 0 विद 0.5, तो इज देयर एनी चेंज इनटू माय प्रेडिक्टेड वैल्यू? जो मेरा एरर निकल के दैट इज एज इट इज, राइट. लेकिन इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ लेमडा टू बी 1, तो 1 into 0.5 will come out to be 1.5, right? 1.5 आ गया, and my error is increased to what? It has increased to what? 4.5. अब total error क्या आ गया? 4.5. तो error आपका increase हो गया, तो obviously जो आपका goodness of fit has been reduced. This is when I'm taking lambda value as 0, मतलब I'm not giving any penalty here. This is what? My error for my linear regression model. तो मेरा error आया 3, I'm not giving any penalty, and these are the sum of absolute values of coefficient. Coefficients आपको already पता है. How do we see them? तो सबका even if it is a negative coefficient, तो absolute बोला गया यहाँ पे, तो सभी का absolute बना के and we sum them all together. तो let's say my sum of absolute values of coefficient is 0.5,
आई एम नॉट टेकिंग एनी पेनल्टी, तो मेरा टोटल आउटपुट क्या आएगा इस एल्गोरिथम का? एरर 3 एज इट इज। तो जो प्रिडिक्शन थी, मे बी दिस इज माई ओवरफिटेड मॉडल एट अ पॉइंट, तो प्रिडिक्शंस आर एज इट इज क्योंकि मैंने पेनल्टी ऐड नहीं की। बट इफ आई कम अप विद अ पेनल्टी ऑफ लेट्स से 1, तो पहले मेरा एरर था 3 टुवर्ड्स व्हाट माय टेस्ट रिजल्ट एंड माय प्रेडिक्टेड वैल्यूज। अब मेरा एरर क्या हो गया? इंक्रीज। सो इफ योर एरर इंक्रीजिंग, तो आपका मॉडल की परफॉर्मेंस क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। एंड हमें ओवरफिटिंग में क्या करना होता है? अगर मेरा ट्रेनिंग रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा है, व्हाट आई हैव टू डू? आई हैव टू ब्रिंग इट डाउन इक्वल टू व्हाट? योर टेस्टिंग रिजल्ट। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इनटू द बैकएंड कि लासो रिज में आप लेमडा की वैल्यू आइडेंटिफाई करते हो। यू टेक दिस लेमडा वैल्यू, यू जितने लेट्स से अभी यहाँ पे मैंने 1 ली, इफ आई टेक इट 20, सो 3 इंटू 20.5 हो जाएगा ना। 20 इज माई लेमडा वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 0.5, तो 20.5 आपका क्या हो गया? पेनल्टी, टोटल पेनल्टी। एंड मेरा एरर कितना आ जाएगा? 23.5। इट मीन्स मेरे मॉडल की परफॉर्मेंस और चली गई नीचे। सो दिस इज द वे हाउ इट इज थिंग, क्योंकि ओवर फिटिंग में आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा हाई होती है, राइट? जब आप अगर आपने ट्रेनिंग डेटा पे ही आप प्रिडिक्शन करोगे, तो योर एक्यूरेसी इज वेरी हाई, इट मीन्स इट इज नॉट अलाउइंग एनी एरर टू हैपन। एंड वही जब आप टेस्ट पे देखते हो इट इज फेलिंग, तो आई ऑल्सो गिव यू इनटू द ग्राफ। लेकिन डिड यू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि हाउ योर एरर, आपका कैसे एरर इंक्रीज हो रहा है व्हेन यू आर एडिंग अ पेनल्टी टर्म? ये चीज क्लियर हो रही है आपको? ठीक है, दिस इज अ केस ऑफ लासो। लासो में हम क्या यूज करते हैं? सो आई टोल्ड यू, फंक्शनैलिटी दोनों की सेम है, दोनों का काम करने का तरीका ऑलमोस्ट सेम है, बस ये जो पेनल्टी ऐड करने का तरीका है वो चेंज हो जाएगा। एब्सोल्यूट -20 का एब्सोल्यूट क्या होगा? लेट्स से इफ योर कोफिशिएंट वैल्यू इज -0.20, तो एब्सोल्यूट से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी ना, बिकॉज अगर नेगेटिव और पॉजिटिव कोफिशिएंट्स है तो वो कैंसिल आउट करके दे कैन कम आउट टू बी 0 ऑल्सो। तो वो आपस में कैंसिल आउट ना करे, इसलिए एब्सोल्यूट वैल्यू इज टेकन एवरी टाइम, कि नेगेटिव सब कुछ पॉजिटिव होके। आप लीनियर रिग्रेशन में थे रजत? व्हाट इज कोफिशिएंट हियर इनटू दिस इक्वेशन mx प्लस c? mx प्लस c वाले इक्वेशन में आपके कोफिशिएंट कौन सा होता है? नो, c इज योर y इंटरसेप्ट, m इज योर कोफिशिएंट। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू फीचर आपका कोफिशिएंट कैलकुलेट होता है। तो वो कैसे निकालते थे हम? यूजिंग COF अंडरस्कोर। हमने देखा था नहीं कि हाउ कोफिशिएंट्स आर कैलकुलेटेड इन लीनियर रिग्रेशन। यस मोहित, आई दैट इज अ पैरामीटर, वो हम खुद से चेंज करते हैं वैल्यू। क्लियर हुआ रजत? यू आर आस्किंग, आई विल कम टू दैट पॉइंट मोहित लेटर ऑन। सो कोफिशिएंट जितने आप, अगर आपके पास 15 फीचर है तो 15 फीचर्स के कोफिशिएंट कैलकुलेट होंगे। सो दीज आर कोफिशिएंट्स दैट m वाली वैल्यू और स्लोप वाली वैल्यू। ठीक है, सो यहाँ पे अब जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू सी हियर हमारे नेगेटिव भी है कोफिशिएंट्स, यहाँ पे नेगेटिव कोफिशिएंट है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव
हाँ जी, am I audible to all of you? Okay. ठीक है, तो लेमडा की वैल्यू वी गिव इट आवरसेल्फ, वी लुक फॉर मल्टीपल वैल्यू, जैसे ग्रिड सर्च में मल्टीपल पैरामीटर्स चेक करते हैं, देन बेसिस ऑन द स्कोर वी गो फॉर द बेस्ट पैरामीटर्स. Similarly, lambda value will try for multiple lambda values and basis on the result, MSCR, MSC accuracy, R square जो भी हमें लेना है, basis on that we'll see कि what value of lambda should we take. ठीक है, ये आपका algorithm calculate करता है. Residual sum of square is also calculated by algorithm. जब हमने we saw that evaluation matrices. So this is RSS is your error. आपके मॉडल में इतना एरर आया एंड दिस कम्स आउट टू बी योर टोटल पेनल्टी, जो आपके एरर को इंक्रीज करेगा, और एरर इंक्रीज होता है तो इट मींस आपकी मॉडल की फिटनेस रिड्यूस होती है एंड विच विल इम्पैक्ट द ओवरफिटिंग पार्ट. And as I told you, the only difference between lasso and ridge is कि lasso में क्या लेते हैं, absolute value of I don't know what is going on. Am I audible? Okay. ठीक है, सो दिस इज द इक्वेशन फॉर लास्ट, और जो मैंने यहाँ पे लास्ट में लिखी है, इट इज रेफरिंग टू द सेम फॉर्मूला. हाँ जी, सो दिस वाज द फॉर्मूला जो हमने लास्ट में डिस्कस किया, रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर प्लस वैल्यू ऑफ लेमडा मल्टीप्लाइड विद sum of all the coefficients. Sum किनका होगा, absolute value of all the coefficients. So this is referring to your absolute value of all the coefficient. W represents your total aggregated value of the coefficient. So this is the equation for lasso. And ridge ka, let us see the equation for ridge. The only difference is here, I'll tell the parameter. So the only difference is here, आप ridge में क्या लोगे, you take the squared value. उसमें हमने क्या लिया, हमने सिर्फ absolute value को add किया, right? We did not take the square part. And into this, what you do is you take the squared. You take the squared value of all the. So you take the square of all the coefficients. उनका absolute value लोगे. You and you take the square and then you add up. बाकी the same thing is here. RSS is also ये आपका फिर से RSS यहाँ पे भी calculate हुआ. So this is your RSS. जो आपका residual sum of squares है. This is calculated here also. This is your lambda parameter. Lambda यहाँ पे भी उसी तरीके से दिया जाएगा. That we will check for multiple values. जिसके साथ एरर सबसे कम है वो विल टेक दैट, एंड दीज आर माय टोटल सम ऑफ ऑल द कोएफिशिएंट्स. एंड लेकिन आपने यहाँ पे क्या किया है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग ओनली एब्सोल्यूट सम, हमने यहाँ पे क्या लिया, स्क्वायर्ड एब्सोल्यूट सम. तो हमने यहाँ पे स्क्वायर कर लीजिए, एब्सोल्यूट कर लीजिए, विल गिव यू द सेम वैल्यू, क्योंकि नेगेटिव को स्क्वायर करोगे तो भी पॉजिटिव आएगा. तो यहाँ पे हमने कोएफिशिएंट्स को क्या किया है, स्क्वायर. सो ओनली दिस इज द डिफरेंस कि हम लासो में क्या करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं, और रिज में क्या करते हैं, वी टेक द स्क्वायर. रेस्ट दिस पॉइंट इज ऑल द सेम. ठीक है, वही चीज है, वैसे ही काम करेगा, बस आपका जो पेनल्टी की स्ट्रेंथ है, क्योंकि पेनल्टी की स्ट्रेंथ कैसे डिसाइड होगी, दिस इज योर टोटल पेनल्टी जो ऐड होगी. अगर किसी चीज का स्क्वायर लेंगे तो आपकी पेनल्टी, अगर आपका टेस्ट लेट्स से आपका जो कोएफिशिएंट्स का सम है 0.5, एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल के लासो के केस में इट इज 0.5, लेकिन इफ आई डू इट इनटू द केस ऑफ रिज, हमने स्क्वायर किया तो इट विल कम आउट टू बी 2.5, राइट. तो आपका पेनल्टी क्या हो गया, मोर स्ट्रेंथेंड हो गई. तो इसलिए रिच के केस में ऑल ऑफ योर कोएफिशिएंट्स टेंड्स टू बिकम 0, क्योंकि हम पेनल्टी और स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं. तो लासो के केस में जो आपके कोएफिशिएंट्स है दे विल नेवर बिकम 0. लासो के केस में दे विल बी क्लोजर टू 0, बट कभी 0 नहीं बनेगी, क्योंकि हम वहां पे सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यूज का सम लेते हैं. लेकिन इन केस ऑफ रिज हम क्या कर रहे हैं, वी आर डूइंग द स्क्वायर पार्ट, एंड स्क्वायर पार्ट की वजह से हमारी पेनल्टी और सीवियर हो जाएगी. जहां पे 2 आएगा कोएफिशिएंट, इट विल ऐड द पेनल्टी ऑफ 4. अगर टोटल कोएफिशिएंट का सम 3 है, मेरी पेनल्टी 9 ऐड हो जाएगी, एंड ऑल्सो लेमडा इंक्लूडिंग विद दैट. तो क्योंकि पेनल्टी ज्यादा सीवियर हो गई, तो रिज के केस में योर कोएफिशिएंट्स आपके 0 कोएफिशिएंट बन जाते हैं. एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, अगर कोई कोएफिशिएंट की वैल्यू 0 है,
then it means that a coefficient has been removed or that feature has been removed from your algorithm. क्योंकि अगर कोफिशिएंट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, कोफिशिएंट की वैल्यू ही जीरो है, इट मींस इट इज नॉट मेकिंग एनी इंपैक्ट ऑन टू योर टारगेट, राइट? तो मतलब वो फीचर हट गया आपके एल्गोरिथम में से इन ऑर्डर विच वाज यूज्ड. अगर कोफिशिएंट की वैल्यू 0.1 भी है तो एटलीस्ट इट इज कंट्रीब्यूटिंग समथिंग टू योर टारगेट. लेकिन अगर वो कंप्लीटली जीरो ही बन गई तो इट इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग एनीथिंग टू योर टारगेट एंड दैट पर्टिकुलर फीचर गेट्स रिमूव्ड. तो इसलिए रिज रिग्रेशन को हम फीचर सिलेक्शन के लिए भी बोल देते हैं, क्योंकि बेसिस ऑन द पेनल्टी, बेसिस ऑन जितना इफ द कोफिशिएंट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, it will put a higher penalty and the value of that coefficient comes out to be zero. और जिसकी वैल्यू जीरो हो गई मतलब वो फीचर इज नॉट इंक्लूडेड इनटू योर मॉडल फॉर प्रेडिक्शन पार्ट. ठीक है, तो फॉर्मूला में देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस फॉर हाउ डू वी टेक कोफिशिएंट्स हियर इनटू रिज एंड हाउ डू वी टेक कोफिशिएंट्स इनटू लासो. ठीक है, कोफिशिएंट्स लासो में आपका एब्सोल्यूट जाएगा और वहां पे रिज में कैसे गया, स्क्वायर के टर्म्स में. ठीक है, सो लैम्डा, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू लैम्डा क्या है. दिस इज अ ट्यूनिंग पैरामीटर जो आपकी स्ट्रेंथ ऑफ योर पेनल्टी कंट्रोल करेगा. लेट्स से एज आई टोल्ड यू, नहीं अंडरफिटिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी. पेनल्टी जीरो होने से डेफिनेटली आपका स्पार्स मॉडल बन जाएगा कि लेट्स से इनिशियली 8 फीचर्स कंट्रीब्यूट कर रहे थे आपके डेटा में, अब मे बी 2 फीचर्स ओनली कंट्रीब्यूट. तो दैट इज अ प्रॉब्लम विद रिज रिग्रेशन. अगर ओनली व्हेन इफ योर पेनल्टी इज वेरी हाई, तभी ये आपका, अगर आप लैम्डा की वैल्यू कम रखोगे उस केस में, देन देयर आर चांसेस कि आपका जो कोफिशिएंट्स है वो जीरो आउट ना हो. लेकिन अगर आपने लैम्डा की वैल्यू भी बहुत ज्यादा रख दी प्लस आपका जो कोफिशिएंट स्कोर हो के वो भी बहुत ज्यादा है, तो डेफिनेटली आपके जो कम इंपॉर्टेंट वाले पैरामीटर्स है जिनकी कोफिशिएंट्स की वैल्यू कम है, डेफिनेटली दे विल कम आउट टू बी जीरो. आपका मॉडल और स्पार्स हो जाएगा. मतलब स्पार्स एज इन इनिशियली 8 फीचर्स कंट्रीब्यूट करे थे लेकिन आपने बहुत हाई पेनल्टी रखी तो 2 फीचर बन गए, तो डेफिनेटली इट विल नॉट परफॉर्म एट दैट टाइम. ओके, तो लैम्डा इज योर पेनल्टी टर्म. आपका वो W क्या है, कोफिशिएंट अपने आप लीनियर रिग्रेशन कैलकुलेट करता है. हम सिर्फ किसको कंट्रोल करते हैं, लैम्डा की वैल्यू को. अगर मैंने लैम्डा बहुत जीरो रखा, जैसे मतलब आई जस्ट गिव एन एग्जांपल, आपका मैंने टेस्ट लिया, यू हैव स्कोर्ड 10 मार्क्स आउट ऑफ 10 आपने 10 स्कोर किया. आई एम नॉट सब्ट्रैक्टिंग, मैं कोई पेनल्टी ऐड नहीं कर रही, इट मींस ओवर फिटिंग है 10 आउट ऑफ 10. लेकिन मैंने पेनल्टी -2 कर दिया, नॉट दैट सीवियर, लेकिन आपका मार्क्स रिड्यूस होकर क्या आ गए 8, नॉट दैट सीवियर, लेकिन स्टिल ओवर फिटिंग से थोड़ा दूर चले गए. लेकिन इफ आई से -9 तो आपके मार्क्स कितने बचे, 1. तो इस केस में व्हाट इज माय पेनल्टी, वेरी मच सीवियर. तो तो वही चीज मैंने यहाँ पे समझाई है दैट इफ यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ लैम्डा योर पेनल्टी गोज टू बी वेरी हाई एंड इट कैन रेंज फ्रॉम 0 टू पॉजिटिव इंफिनिटी. ठीक है, तो जितनी ज्यादा बड़ी लैम्डा की वैल्यू दोगे उतने कोफिशिएंट्स आपके पेनलाइज हो जाएंगे, उतना आपके मॉडल की परफॉर्मेंस भी रिड्यूस होती चली जाएगी. सो वी जस्ट हैव टू सी what value should we go for lambda. We see multiple values, we calculate the error and then जिसमें आपका error सबसे कम आ रहा है, because सबसे बड़ा error लिया मतलब penalty ज्यादा है. Let's say if my error is 3 and if my error is 10 after putting into that equation, तो इसमें मेरी penalty ज्यादा थी, lambda value ज्यादा थी, so we go for the minimum error using ridge regression जिसमें minimum error आ रहा है, having penalty term added जिसमें minimum error होगा, we'll take that into consideration. We'll see how when we do the coding part. ठीक है, I'll explain this concept, what do you mean by bias and variance. I'll have a graph, उससे we'll have an understanding for this one. So ridge regression is also called as Lasso L2 regularization, और इसको फीचर सिलेक्शन के लिए भी बोल देते हैं. फीचर सिलेक्शन एज आई टोल्ड यू, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट्स की वैल्यू को स्क्वायर कर देते हैं. एंड सिंस व्हेन वी आर स्क्वायरिंग द पेनल्टी इज इंक्रीजिंग एंड पेनल्टी इंक्रीज होने से आपके कोफिशिएंट्स की वैल्यू विल कम आउट टू बी 0 एंड 0 होने से दैट पैरामीटर गेट्स एलिमिनेटेड. ठीक है, सो इट विल ऐड सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द कोफिशिएंट. हायर द लैम्डा वैल्यू, आपने लैम्डा भी बहुत ज्यादा रखा प्लस स्क्वायर वैल्यू भी बहुत ज्यादा थी, तो पेनल्टी विल गो आउट टू बी वेरी हाई. ठीक है, एंड देन इट विल गिव यू इट विल गिव ना आपका फिर ज्यादा श्रिंकेज हो जाएगा एंड देन योर आपका जो कोफिशिएंट्स की वैल्यू है दैट विल रिड्यूस and then you get a sparse model. I'll show you how कैसे आपकी values reduce हो जाएंगी. We'll see that thing also. Okay. So it all depends upon what value of lambda you give. So lambda में आपके coefficients can turn out to be 0. L2 में आपके coefficient 0 हो जाएंगे, लेकिन L1 में कभी आपके coefficient 0 नहीं होगी. जैसे let me show you the code here.
सो दिस इज योर रेगुलर लीनियर रिग्रेशन कोड. ये आपका सिंगल लीनियर रिग्रेशन कोड है जिसमें आपके कोफिशिएंट्स की वैल्यू है. लेकिन व्हेन आई एम यूजिंग L1 regularization, when I'm calling what in here, I'm calling ridge, that is L2 regularization. So when I see here, this is with penalty 1. मैंने एक बहुत कम penalty रखी, तो I'm not having that many values closer to 0. लेकिन if I increase the value of lambda, मैंने lambda की value यहाँ पे 20 की, penalty of 20, and now you see that coefficients value have been reduced to 0. Actually मैंने उल्टा बताया आपको. लासो में आपकी values will turn out to be 0. I told you vice versa. लासो में your coefficient turns out to be 0, not into ridge. L1 में आपकी coefficient 0 हो जाएंगे. So you see here, we'll see this part. लेकिन when you are doing lasso, when you are using prediction using lasso algorithm, you see मैंने यहाँ पे penalty increase की, this is with 0.1. And you see most of the values have been, आपके coefficients क्या हो गए, total 0 हो गए, means they have been eliminated from my algorithm. तो मेरे algorithm में सिर्फ कितने parameter बचे? Only RM, number of rooms, and only PT ratio, जो सबसे ज़्यादा important थे, and only L stat. And if I further decrease the value of coefficient, let's say if I'm further increasing it, तो इनकी value change हो गई. Initially it is 3.8 room, and इसमें what is the value of RM? 3.5. And this is 0.34, 0.49. You see, it has been increased here. तो थोड़ा सा when I've decreased the value, still my values are 0. So it all depends कि आप अपनी lambda की value क्या लेते हो. Basis on that, at times when using lasso, अब इसको this is your sparse network. क्योंकि although आपके पास 12 feature है, लेकिन काम कितने कर रहे हैं? Only 3. So you can also say them, these are the most important features for your target. तो फीचर सिलेक्शन की भी टेक्निक बोला जाता है इसको बिकॉज ऑफ दिस पर्पस दैट इट विल नॉट मेक दोज, मतलब उनको सबसे लास्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे दे विल दे विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, या उनकी वैल्यू लास्ट में डिमिनिश होगी. जैसे यहाँ पे ऑल्दो दे वर इंपॉर्टेंट लेकिन दे केम आउट टू बी 0, they have not come out to be 0, so they are important for my target. RM is important, PT ratio is important, L stat is important. ठीक है. So this is the graph, maybe it will help you more. So ये एक single linear regression का graph है. Your red points are your testing data points. So these are not your original, these are your test data points. जिसपे हमारी best fit line है of your training data. These are your best fit lines. आपने ये अपने मॉडल को evaluate करना. So we are looking for overfitting part here. तो मैंने training पे किया. Training पे हम we have done the prediction and these are your test data points from your training data. मतलब जो आपका वाई ट्रेन है ये वो वाले डेटा पॉइंट्स है एंड दिस इज द बेस्ट फिट लाइन यूजिंग दैट ट्रेन्ड एल्गोरिथम. तो जो हमारा ओवर फिटिंग में क्या होता है, हमारा वाई ट्रेन में कोई एरर नहीं आता और इट इज वेरी लेस, देन व्हेन इट कम्स आउट टू बी ओवर फिटेड मॉडल. नाउ अज्यूमिंग दिस इज द ओवर फिटेड बेस्ट फिट लाइन फॉर माय ट्रेनिंग डेटा. ठीक है, अज्यूमिंग वी हैड ओनली 2 पॉइंट्स, तो इट इज क्रॉसिंग देम, उनके ऊपर ओवरलैप कर रही है. सो इट मीन्स दिस इज गिविंग मी 100% करेक्ट रिजल्ट, कोई एरर नहीं है because जो मेरी predicted वाली थी and that is lying onto the best fit line, so there is no error as per this model जो हम यहाँ देख रहे हैं. So in case because only looking for y train there is no error, this is only my y train data. ठीक है, जिसपे हम ओवरफिटिंग करते, क्योंकि ओवरफिटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, आपका ट्रेनिंग डेटा पे बहुत अच्छा रिजल्ट. सो ऑन टू माई y train I am not having any error, my actual values are similar to my predicted values. लेकिन when your y test came in, जो आपका अनसीन डेटा है दैट केम इन, सो डू यू हैव एरर्स, हमारा एरर निकल के आया क्योंकि ओवरफिटेड था किसके लिए, ट्रेनिंग डेटा के लिए. तो जब अनसीन डेटा निकल के आया तो उसके लिए क्या आया, ह्यूज वेरिएंस. सो ह्यूज वेरिएंस इज हियर, हाईली बायस्ड टुवर्ड्स व्हाट, आपकी जो बेस्ट फिट लाइन है किसके लिए बायस्ड है, टुवर्ड्स योर ट्रेनिंग डेटा. एंड आपका इसमें वेरिएंस किसके लिए ज्यादा है, टुवर्ड्स योर टेस्टिंग डेटा. बिकॉज ओवरफिटिंग के केस में यही तो होता है ना, ट्रेनिंग के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट और टेस्टिंग के लिए बेकार रिजल्ट. तो सेम थिंग इज हैपनिंग हियर. इंस्टेड ऑफ मेकिंग दिस लाइन इनटू दिस पैटर्न, आपका मॉडल ने ये प्रेडिक्शन बताया एज पर योर ट्रेनिंग इट इज वेरी गिविंग वेरी गुड रिजल्ट. लेकिन टेस्टिंग के केस में व्हेन योर ग्रीन डेटा पॉइंट्स आर योर टेस्ट डेटा पॉइंट्स, जब वो आए they are having a huge variance, they are far away from the actual best fit line and they are having a good amount of error. ठीक है, so this is what happens in case of overfitted model.
In case of linear regression, if a model is overfitted, this is what will happen. Now let's say I want to have a lasso ridge. So new line is overfitted to the training data. So इस case में if I'm having a lasso ridge, तो lasso ridge क्या करता है? As I told you, it will take the sum of residual sum of squares plus it will do ridge में क्या था ना, आपकी values का क्या हो जाता है? They come out to be, उनको square कर लेते हैं. So coefficients, just coefficients निकली है, coefficient and slope are the same thing. उनको add करके we come up with the squared value. Squared values are taken and added, and this is my penalty terminology, penalty parameter. So if I have to, and let's say this is my ridge regression line, I'll explain the concept. Let's say अगर मुझे इस red line के लिए मुझे error निकालना है, what is my residual sum of square for my training data? Training data के लिए इसका error क्या आएगा? 0, right? ये चीज समझ में आ रही है what I'm trying to explain? This is your training data. इसके लिए आपका error क्या है? 0. Testing के लिए error is very high, लेकिन training के लिए error is 0. Now let us say instead of this best fit line, I have applied a ridge regression model. उसने अपना best fit line मुझे निकाला. Having what? Squares into having the RSS plus lambda into slopes का square consider करके, using that terminology. So assuming this is the equation of linear regression. Assuming we don't have the model, so these values are assumed. ठीक है? Let's say this was your intercept value, b की value intercept ये थी, and this is the value for your slope, and this is your parameter. तो क्योंकि आपका overfitted model है, तो you will not have any error here. ठीक है? You will not have any error. And slope में इसका, what is the slope here? This is 1.3 is the slope. तो यहाँ पे किसका square हो जाएगा? 1.3 का ही square होगा. 1.3 will be squared in case of ridge regression, right? And it will be multiplied with what? Lambda parameter. And square आपका error क्या है? 0. So 0 into, let's say if I'm taking lambda value of 0, तो did I get a different line? Did I get a different predicted value? I did not get, क्योंकि error भी यहाँ पे 0 था, मैंने lambda भी 0 लिया, तो slope के साथ multiply होकर it came out to be 0. Now let us say if I'm taking a bigger value of lambda, so ideally as per this line, this is 0, ठीक है? And slope में आपका ये square हो जाएगा. So this is the slope, this will be squared. So slope is this is referring to this value. And if I multiply with this 1, if I multiply with 1 or with 2 or with lambda value of 10, तो क्या हो गया यहाँ पे? 13. If I take it 10 also, 13. So मेरा error क्या निकल के आया? I'm having the new predicted value, जिसमें मेरा total error क्या है? 13. So definitely my best fit line will also change. क्योंकि अब aggregated error मेरा आ गया 13. पहले aggregated error क्या था? 0. ठीक है? So if I take it here, this is best fit line क्योंकि it is overlapping, so obviously this will be 0, and this is your slope which I've already told you. A lambda parameter, let's say if you're taking lambda value of 1, तो total क्या निकल के आएगा? So this is my RSS जो कि 0 था, 1 into 1.3 that is 1.69. तो आपका error क्या निकल के आया? This is your predicted value now. पहले what the value was equal to, let's say पहले अगर मेरी value 2 थी, तो prediction होके भी क्या आया था? 2, right? लेकिन अब मेरी actual value 2 है, लेकिन इसके according क्या आई है? It let's say it is 3.69. तो there is an error of 1.69 now, right? तो maybe जो आपकी पहली value 2 को 2 बताया, maybe now you know it comes out to be your best fit line is maybe changed to this kind of line. There is an error between the actual and the best fit line now, because अब आपका error increase होके 1.69 आ गया है, तो maybe it could be onto the positive side or it could be onto the negative, लेकिन यहाँ पे positive है because हम यहाँ पे क्या लेते हैं? Square. So square is always positive. So आपकी जो पहली value 2 थी, it has been increased to 3.6 now. And best fit line के according अब आपकी 3.69 की prediction यहाँ पे है, तो best fit line आपकी यहीं पे बनेगी. So you have gotten an error now. ठीक है? Similarly, assuming कि इसके लिए भी prediction यहाँ पे हुई, तो इसके लिए भी error generate हो गया, right? Is it clear what ये मैंने जो समझाया यहाँ पे? What this 3.69 am I referring to? Is this clear? So अब यहाँ पे the error got generated. Let's say the predicted value for this one was here, the predicted value for this one was here, and let's say this is the new equation for my line, जिसमें मेरा, क्योंकि अगर prediction आपकी error अलग आई है, आपका values अलग आई है, तो definitely you will have a different.
So let's say this is my new y-intercept and this is my new slope. इसके साथ we'll take up with different values and we'll see कि how the values gets changed. ठीक है? Assuming now, let's say the error for this one is 0.3 and the error for the another one is 1.1. ठीक है? And इसके साथ if I am increasing the value, let's say this is another example कि if अगर जो हमारी नई रिज रिग्रेशन लाइन प्लॉट हो गया जिसमें 1.69 था हमारा एरर, तो हमारी नई वैल्यूज नई प्रेडिक्शन हुई. सो अज्यूमिंग फॉर दैट योर स्लोप इज दिस वन एंड योर y इंटरसेप्ट इज 0.9. तो अगर इस पे हम फर्दर रिज रिग्रेशन लगता है तो व्हाट विल हैपन, इट विल टेक द सेम फॉर्मूला लैम्डा इनटू स्लोप का स्क्वायर एंड रेसिडुअल सम स्क्वायर क्या था 0.3 was the difference for this particular one, 0.1 was the difference for this particular one. तो this is what, this is your residual sum of square. ठीक है? उसके साथ this is my lambda value and this is what your slope, जो हमारा इक्वेशन है जो हमने assume किया, this is my slope value. ठीक है? So slope value, so if we put them, if we do the calculation part, तो error comes out to be my 0.74 now. तो definitely this is second example, not that one, this is second example. तो अब मेरी नई लाइन प्रेडिक्शन हो क्या है. Now let's say इसके लिए मेरा ट्रेनिंग डेटा यहाँ पे था, I've got an error, my variance was huge, right? In that case, because it was fitted to training data, तो ट्रेनिंग के लिए रिजल्ट अच्छे थे लेकिन टेस्टिंग के लिए खराब थे. Now if talking about this one, so इसका डिस्टेंस इसके लिए ज्यादा था रेड लाइन के लिए, comparatively the distance is much closer. It was having this distance, now distance is this one for this one. तो आपका वेरिएंस रिड्यूस हो गया. वेरिएंस किसके लिए रिड्यूस हो गया? टेस्टिंग डेटा के लिए. सो नाउ द टोटल वैल्यू कम्स आउट टू बी 1.69. सो नाउ एंड जो आपका ओरिजिनल था, एंड दिस इज फॉर रिज रिग्रेशन, जब हमने अपना वैल्यूज क्या ली, वी हैव टेकन आवर ओन वैल्यूज ऑफ 0.74. ठीक है? नाउ अज्यूमिंग हियर व्हेन दिस लाइन केम अप, हमने ये वैल्यू निकाल, दिस वाज व्हाट, रेड इज व्हाट योर बेस्ट फिटेड लाइन फॉर योर ट्रेनिंग डेटा जो ओ फिटेड मॉडल है, एंड दिस इज माय रिज रिग्रेशन लाइन. तो ऑब्वियसली पहले इनका रेड लाइन वाज बायस्ड टुवर्ड्स दिस वन, राइट? तो अब हमने रिज रिग्रेशन लगाने से क्या हो गया, बायस हैज बीन रिड्यूस्ड. जो बायस पहले इसके लिए बहुत ज्यादा था, एरर सॉरी बायस कम था, बायस इज व्हाट, एरर, बायस कम था, नाउ बायस हैज बीन रिड्यूस्ड. एंड जो इनका वेरिएंस ज्यादा था, यू नो, आपका गिवन दिस रेड लाइन, दे वर हैविंग अ हाई वेरिएंस, दे वर मच फार टू दिस रेड लाइन. अगर इसको हम रेड लाइन से देखते हैं कंपेयरिंग, दे वर मच फार टू इट. Comparing this now new predicted value of ridge regression, so it is much closer, क्योंकि इसमें error है, क्योंकि अगर आपका ट्रेनिंग में error आ गया, you know, your model has been shifted, आपका वही result नहीं है, your model has been shifted and it will definitely अब now you see these values are much closer, so obviously your variance has been reduced with the new ridge regression line. ठीक है? So this way, जैसे अब हमने ridge regression में क्या किया, we took the square values. Similarly lasso regression हम क्या लेंगे, so instead of squaring those value, we take the absolute difference, we take the absolute sum values. तो जब भी हमने 8 का 0.64 बनाया, now 0.8 will be only taken here. तो absolute values ले ले जाएंगे, square value नहीं लेगा, बाकी rest of the process flow is same, it will not change. ठीक है? So the only difference between is here formula, आपका वही penalty term add होगा, वही आपका residual sum दोनों में use होगा. इसमें अगर 0 था and इसमें वैल्यू क्या आई 4, if it was 2 here. ठीक है? lambda if it is taken 10 here, तो आपका एरर निकल के आ जाएगा 14, जो मैंने इनिशियली बताया. and if lambda was taken 10 here, then what is your error now? It has been increased by 20. तो इसमें आपकी सीवियरिटी ज्यादा इंक्रीज हो गई. your you know line will much have bigger error than this one, क्योंकि आइडियली एरर था 0, now error is 40. इसमें एरर था इनिशियली 0, now error is what, 20. तो डेफिनेटली your training accuracy gets reduced. And जो आपका टेस्टिंग रिजल्ट्स है, फॉर देम द रिजल्ट्स, द डेटा पॉइंट्स गेट मच क्लोजर. तो आपका ओ फिटिंग रिड्यूस हो जाता है बाय इंक्लूडिंग दीज स्लोप्स एंड दिस इक्वेशन. सो दिस इज स्पेसिफिक टू रिज रिग्रेशन एंड दिस इज स्पेसिफिक टू योर लासो रिग्रेशन. ओके, बाकी कॉन्सेप्ट इज ऑल द सेम, जस्ट लाइक टू लीनियर रिग्रेशन. कैसे वैल्यूज प्रिडिक्ट हुई है, कैसे एरर निकाला है, कैसे बेस्ट फिट लाइन बनी, all that is same. So only this thing is added to the error part. There is no such hard and fast rule ki which is better. Let's say if you want to do have a feature engineering, मतलब आपने feature selection भी करना है, you want to find out
यू वांट टू, लेट्स से यू आर एट अ सिचुएशन कि एल्गोरिथम विल इटसेल्फ फाइंड आउट कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, आपने साथ साथ फीचर सिलेक्शन भी करना है, देन यू कैन गो विद लासो, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली फाइंड आउट करेगा कि मुझे कौन से फीचर लेने हैं, ऑटोमेटिकली एज इन कैलकुलेटिंग द कोफिशिएंट्स एंड यूजिंग दोस कैलकुलेशंस, ठीक है। इट विल इटसेल्फ फाइंड आउट कि कौन से फीचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से लेने हैं, कौन से नहीं लेने हैं। वेर इन यू केस रिज रिग्रेशन आप यूज करोगे, इन केस यू यूज रिज रिग्रेशन, एवरीथिंग आपने जो फीचर्स लिए वो सभी फीचर्स एज इट इज रहेंगे, ऑल्दो उनका इम्पैक्ट जरूर चेंज हो जाएगा। अगर आरएम वाज स्ट्रांगली इम्पैक्टिंग, उसका इम्पैक्ट थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन फीचर्स विल बी ऑल द सेम। अगर आपने 14 फीचर्स लिए हैं तो 14 के 14 रहेंगे रिज रिग्रेशन में, बट देर आर चांसेस व्हेन यू यूज लासो 14 की जगह वो 10 पे भी आ जाएंगे। तो उसमें एक एडिशनल चीज है, फीचर सिलेक्शन हो जाता है जो रिज में नहीं होता। So it's up to you, both any can be used, but there are chances that you might lose your feature in case you have used lasso regression, and then that is also be taken care कि आप उसमें penalty क्या देते हो, that plays an important role making your coefficient 0, ठीक है। सो दिस इज अ सिंपल कोड, इसमें ये लंबा दिख रहा है कोड ज्यादा, लेकिन रिपीटिशन है इसमें काफी, ठीक है। सो हमने बॉस्टन के लिए लीनियर रिग्रेशन लगाया था, सो सेम डेटा सेट हियर, आई शो कि कैसे यू नो वैल्यूज आर डिफरेंट, कैसे आपकी कोफिशिएंट वैल्यू चेंज हो जाती है। तो दिस इज योर बॉस्टन डेटा सेट, ठीक है, एंड आई हैव टेकन लीनियर रिग्रेशन, I've done the fitting part, I've done the prediction part, I'm using LRAG here, I'm using linear regression LRAG, ठीक है। I've taken this algorithm, I've calculated the error RMSE, तो RMSE मेरा इसमें आया 4.59, ठीक है, and I'm also visualizing what coefficients, तो जब मेरे coefficient using linear regression, these are my coefficient, and as per that NOx is very important, as per this which else, CHAS is important, RM is important, and जो ज्यादा नेगेटिव, PT ratio is important, LSTAT is important, RAD is also important, DIS is also very important, ठीक है। आपके फीचर्स की फीचर्स टेल यू नो हाउ स्ट्रॉन्ग दे कैन इम्पैक्ट योर टारगेट, सॉरी कोफिशिएंट्स, तो दीज आर योर रिस्पेक्टिव फीचर्स एंड उसके रिस्पेक्टिवली दीज आर योर कोफिशिएंट्स व्हिच हैव बीन कैलकुलेटेड बाय लीनियर रिग्रेशन, एंड इनको हमने कैसे देखा, बाय यूजिंग दिस LREG, दैट इज माय एल्गोरिथम नेम, attribute or variable, and then dot cof underscore function, तो इससे I've gotten these coefficients and I've put them into a data frame and I'm able to visualize them, ठीक है। So now let us see when we implement a lid, and this is your graph, मैंने एक graph taken and I've just put up the values, LREG coefficient columns को मैंने यहाँ लिया onto my x axis, these are my y axis values, and this is the color के लिए मैंने list provide की है, so this is the color here। LREG coefficients column क्या है, x axis पे LREG coefficient columns, so मेरा LREG coefficient columns is, this is my data frame, उसमें I'm putting this onto my x axis and I'm putting these values onto my y axis, ठीक है। इस वजह से हमारे पास नेगेटिव भी है, नॉक्स -15 है ना, तो इस वजह से you will see that NOx is still -15, -20 यहाँ पे it's not updated, so आपकी column names are onto your x axis and your coefficient values onto your y axis, this is because मैंने यहाँ पे बार ग्राफ में x एक्सिस पे कॉलम्स लिए, y एक्सिस पे कोफिशिएंट वाली वैल्यूज ली फ्रॉम द डेटा फ्रेम व्हिच आई हैव क्रिएटेड हियर, ठीक है। इज इट क्लियर टिल दिस पॉइंट, सीधी कुछ नहीं है यहाँ तक, अभी तुमने लीनियर रिग्रेशन लगाया है एंड जस्ट मेड दिस ग्राफ, जस्ट हैव अ लुक एक बार एंड टेल मी दैट डू यू हैव एनी डाउट और क्वेश्चन। नो दिस इज नॉट ओवरलैपिंग निष्कर्ष, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज हैं, कोई कोफिशिएंट्स को हमने प्लॉट किया तो कोफिशिएंट्स आर यू नो अराउंड 0 आल्सो, तो जैसे 0.012 है बी की वैल्यू, सो बी कॉलम इज अराउंड यू नो वेयर इज बी कॉलम,
here at the very like this side. So it is barely visible. DIS की value was significant 1.29. Negative में था तो it is getting onto the negative side. जो positive है वो above है, जो negative है वो below है. ठीक है. सिंपल बार ग्राफ पे आपकी जो कोफिशिएंट्स की वैल्यू है, these values are getting plotted onto your y axis. तो नेगेटिव वाली have been plotted below, पॉजिटिव वाली have been plotted above. ठीक है. Do you have any question into this one till this point? Okay, so एक काम करते हैं, I'll take the code, this one, because I need to explain. I'll take it into the next class. Meanwhile, I'll share this notebook with all of you. ठीक है. तो it's not that, इसमें repetition ज़्यादा. When you go through it yourself, you'll find that code is repeated again and again. हम बार बार graph plot कर रहे हैं, हम बार बार वही चीजें निकाल रहे हैं, similar to lasso, similar to ridge. तो maybe into the next class, yeah, I'll share the PPT. तो next class में हमारे पास 2-3 चीजें बच गई हैं. So next week we'll be completed with our syllabus. It won't take much time, 30 minutes maximum ये हो जाएगा. Then I'll explain association rules and sampling part, and then we are done. ठीक है. So आज के लिए winding up the class, and see you next week everyone, and I'll share the code and PPT with you guys. Okay. Thank you so much everyone, and have a good time. Okay. Thank you. Thank you.